who are part of this BCM family. Have a meaningful celebration and enjoy this evening. I would like to share a few thoughts on what Christmas should mean for us. As we approach the festive season of Christmas, I extend warm wishes and heartfelt gratitude to each one of you. In the spirit of Christmas, I wanted to take a moment to express my deepest appreciation for your dedication and compassion. Shine brightly, bringing comfort and healing to those in need. This year, more than ever, your enthusiasm to the well-being of our patients has been remarkable. Your hard work, empathy, and professionalism have not only helped to heal bodies, but also provided comfort and hope to those in need. As we come together to celebrate this Christmas, let us pause to acknowledge the collective strength and spirit that defines our hospital community. Each one of you plays a crucial role in creating an environment of healing, support, and kindness. Your contribution, big and small, are the building blocks of the exceptional care we provide. Thank you for being the heart and soul of our hospital family. Your dedication and hard work make a real difference, and I am incredibly proud to lead such an outstanding team. As we embrace the spirit of Christmas, may the warmth of the season fill your hearts with joy and peace. Take this time to cherish moments with loved ones. Reflect on the accomplishments of the past year and look forward to the possibilities that the new year holds. May the coming year bring you renewed energy, continued success, and an abundance of blessings that warm your heart. Wishing you and your loved ones Happy Christmas and a Happy New Year. Thank you. आपके बहुमूल्य शब्दों के लिए धन्यवाद सिस्टर। अब कार्यक्रम को मनोरंजक बनाते हुए अलना और आशिया राजस्थानी लोक नृत्य का प्रस्तुत करने जा रही हैं। राजस्थानी लोक नृत्य आप सभी समझ ही गए होंगे। इसमें राजस्थान की परंपरा, जोश, उल्लास, उमंग एवं वहाँ की संस्कृति की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। वहाँ के परिवेश की सौंदर्य महक को प्रस्तुत करने बच्चे निसंदेह आपका मन नहीं लेंगे।
सीतामढ़ उपबली पुरोहित को मंच की शोभा को द्विगुणित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ कि वे हमें इस पर्व का महत्व व परमेश्वर के प्रेम को बांटने के लिए हमें प्रेरणा दें। First, greetings to dear sister Shaini Anjali, the administrator, dear fathers, dear sisters, doctors and nurses, and all my dear ladies and gentlemen. The season of Christmas, as always, resonates joy, peace, love, and happiness. As we are nearing particularly to the feast, we are excited to celebrate the birth of Christ. And when we are celebrating the birth of Christ, and this season brings us happiness, along with the happiness, there is a spirit of community, spirit of unity, and as well as a sense of godliness. Christmas is a love story which reminds about a loving God who sent His only Son in order that we may be redeemed. We each, you and me, each of us may be redeemed. So for that is the reason that Jesus came to this world. And Christmas is nothing. It is the love of the Heavenly Father towards each of us. So when we are celebrating this feast, Bible says the meaning of the word Jesus is He will save His people from their sins. And also Jesus is called with another name, that is Emmanuel. What is the meaning of the word Emmanuel? Emmanuel means God is with us. So when God is with us, we need to make constant efforts in order that we may find God within ourselves, God with us. So when we find God within us, the best and the tangible way to find God is doing the best service. So in the Bible we read that if anyone who says that I love God and hates his own brothers and sisters is a liar. So therefore, the season of Christmas is the best time to receive grace and revive our life and also our actions. So as we are sitting here as people-oriented leaders, we are called upon to heal, to be the doctors of the souls as well as the doctors of the body. So therefore, we are all to be called upon to be the instruments of mercy, love and service. As on this auspicious day, as we stand here, I wish and pray that we may be filled with such grace that when a person approaches us, he must feel that doctor or rather that nurse or that person, that religious person has not only injected medicine in our veins, but that person has injected love and affection in our veins. So once again on this day, on behalf of Father Claudius de Almeida, the Principal and Parish Priest of Sacred Heart, and on my behalf, I wish all of you a very happy Merry Christmas and also a prosperous New Year. Thank you and God bless you. आपके अनमोल शब्दों के लिए
बहुत बहुत आभार पाती। अब आपके समक्ष बच्चे नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नृत्य भावों एवं भंगिमाओं का अनूठा सम्मिश्रण है, जिसके माध्यम से हम सबके आंतरिक हर्ष, उल्लास जैसे उद्गारों की अभिव्यक्ति होती है। यीशु तेरे दरबार में आया हूँ मैं यहाँ, यीशु तेरे दरबार में आया हूँ मैं यहाँ, यीशु तेरे दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। अरे दाऊद की तरह मैं नाचूंगा यीशु, मैं नाचूंगा। मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। अब हम आज के विशेष प्रदर्शन की ओर बढ़ते हैं, जो है मनोरंजक नाटिका, जो क्रिसमस की कहानी को खूबसूरती से चित्रित करती है। इस प्रस्तुति के माध्यम से हमने आपको बैतलहम के हृदय स्पर्शी दृश्यों तक ले जाने और बड़ा दिन के महत्व को दर्शाने का प्रयास किया है। पवित्र शास्त्र ने लिखा है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत कीर्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो आइए प्रभु के प्रेम को इस प्रस्तुति द्वारा महसूस करें। पापा देखो, माँ ने मुझे कितना सुंदर सूट दिलाया है और दादी ने भी मुझे कितना अच्छा गिफ्ट भेजा है।
थैंक यू माँ, लव यू। अच्छा अच्छा, अब आप लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें चर्च भी तो जाना है ना। पापा देखिए, मारिया ने कितने सुंदर कपड़े पहने हैं। मेरे पास तो वही पुराने कपड़े हैं, पिछले साल वाले। आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिलाया, न खिलौने न कपड़े। बेटा एग्नेस, थोड़ा सब्र करो, मैं तुम्हें इससे भी अच्छे कपड़े और सुंदर खिलौने दिलवा दूंगा। अरे तुम क्या दिला पाओगे अच्छे कपड़े और खिलौने? तुम तो खाली बस दिलासा देते हो, कुछ करना धरना तुम्हारे बस का तो है नहीं। पापा मुझे अच्छे कपड़े ला कर दो, मैं तभी चर्च जाऊंगी। मैं वही पुराने कपड़े नहीं पहनूंगी, मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं। जाओ जाओ, कहीं से भी नए कपड़े ला कर दो, तभी हम दोनों चर्च जाएंगे, समझे? अरे एग्नेस ना समझ है, तुम तो समझदार हो। मैं इस वक्त कहां जाऊं, क्या करूं? अरे किस बात पर झगड़ा हो रहा है? आज तो बड़ी खुशी का दिन है। चर्च चलकर प्रार्थना करने के बजाय आप लोग यहां पर झगड़ा कर रहे हैं। मेरे भाई, आज तो खुशी बांटने का दिन है। आज का पर्व हमें भाईचारा सिखाता है। छोटी छोटी बातों पर आपस में मनमुटाव नहीं रखना चाहिए। प्रभु यीशु ने सारे संसार को यही संदेश दिया है। जब दुनिया बाहरी आकर्षण में डूबी थी, चारों ओर अंधकार का बोलबाला था, तब दुनिया को सही राह दिखाने के लिए प्रभु यीशु ने जन्म लिया। प्रभु हमारा दिल देखता है, ना कि हमने क्या कपड़े पहने हैं। हमें उस घटना को हर बार याद करना है जब प्रभु ईश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा, ताकि दुनिया का उद्धार हो सके। वे ईश्वर के पुत्र थे, फिर भी उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया और हमारे बीच रहने का निर्णय किया। वे स्वयं ईश्वर थे, फिर भी वे हम सब के लिए मनुष्य बने। ईश्वर मनुष्य बने? पर ईश्वर तो ईश्वर हैं, उनको मनुष्य क्यों बनना पड़ा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मारिया, एग्नेस, चलो आज मैं तुम्हें उस घटना के बारे में बताऊंगा जो आज से लगभग 2000 वर्ष पहले घटित हुई थी। आप कौन सी घटना की बात कर रहे डैडी? बात बहुत पुरानी है। कैसर अगस्तस राजा ने फरमान जारी किया कि सभी लोगों की जनगणना हो तथा उन पर कर लगाया जाए। इसलिए सभी लोग अपने अपने नगर की ओर चल दिए। नाजरत शहर के पास की जगह गलीली से यूसुफ भी दाऊद के नगर बेथलेहम की ओर अपना नाम लिखवाने चल पड़ा। यूसुफ के साथ उसकी गर्भवती पत्नी मरियम भी थी, जिनकी कोख में प्रभु यीशु थे। और जब वे बेथलेहम में थे, तभी मरियम की गर्भावस्था पूर्ण हुई, पर उन्हें सिर छिपाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी ताकि वे बालक को जन्म दे सकें।
का मार्ग दिखाए। आपस में सब प्यार करो, ये संदेशा लाए। झूमे हम, नाचे हम, गाए मिलके तराने आज हम। झूमे हम, नाचे हम, गाए मिलके तराने आज हम। गीत खुशी के गाओ, नया सवेरा जागो। गीत खुशी के गाओ, नया सवेरा जागो। हम सबके पापों को मिटाने जग में आया मसीह। झूमे हम, नाचे हम, गाए मिलके तराने आज हम। झूमे हम, नाचे हम, गाए मिलके तराने आज हम। झूमे धरती गगन, गा रहे हैं दूतगण, पैदा हुआ है मसीह। आओ सभी जन दर्शन कर लो, चरनी में लेटा मसीह। झूमे धरती गगन, गा रहे हैं दूतगण, पैदा हुआ है मसीह। आओ सभी जन दर्शन कर लो, चरनी में लेटा मसीह। झूमे हम, नाचे हम, गाए मिलके तराने आज हम। झूमे हम, नाचे हम, गाए मिलके तराने आज हम। झूमे हम, नाचे हम, गाए मिलके तराने आज हम। झूमे हम, नाचे हम, गाए मिलके तराने आज हम। सुनो सुनो सुनो, राजाधिराज रोमी सम्राट कैसर अगस्तस महान का यह फरमान है कि सभी लोग अपने अपने कुल और जाति के नगरों में जाकर जनगणना सूची में अपना नाम दर्ज करा लें। जो कोई भी राजा की इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सुनो सुनो सुनो, यूसुफ, अब बहुत समय नहीं बचा है। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु हमें जल्दी ही कोई सुरक्षित जगह पर पहुंचा दें। मरियम, मैं समझ सकता हूं कि तुम बहुत तकलीफ में हो और बहुत थक भी गई हो। देखो शायद इस घर में हमें थोड़ी सी जगह मिल जाए। ये सज्जन शायद इस सराय के मालिक हैं। भाई, क्या आपके पास कोई कमरा खाली है? अरे मुझे माफ करो भाई, यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। कृपया समझने की कोशिश करिए महोदय। मेरी पत्नी के गर्भ का समय पूर्ण हो चुका है और वो किसी भी समय बालक को जन्म दे सकती है। वो बहुत तकलीफ में है मेरे भाई। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं भाई, कोई भी जगह हमें दे दीजिए जहां बस हम रात भर बिता सकें। मैं समझ सकता हूं भले इंसान, पर मेरे यहाँ एक अस्तबल खाली है। वहां कुछ भूसा पड़ा है, आप चाहें तो वहां विश्राम कर सकते हैं। मरियम, मैं भली भांति जानता हूं कि तुम्हारी कोख में प्रभु यीशु हैं और ये जगह उनके जन्म के लिए बहुत ही खराब है, पर मेरी भी मजबूरी है। हमें दूसरी
कोई जगह नहीं मिल रही है मरियम। कोई बात नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि परमेश्वर हमारा ध्यान जरूर रखेंगे। हम उन्हीं की शरण में है ना, इसीलिए बैतलहम का तारा हमको देता ये पैगाम, गौशाले की चरनी में जन्मा यीशु महान। बैतलहम का तारा हमको देता ये पैगाम, गौशाले की चरनी में जन्मा यीशु महान। बैतलहम का तारा, उसकी महिमा अपरंपार करते फरिश्ते जय जयकार। उसकी महिमा अपरंपार करते फरिश्ते जय जयकार। वह आया है हमको बचाने, देकर अपनी जान, देकर अपनी जान। बैतलहम का तारा हमको देता ये पैगाम, गौशाले की चरनी में जन्मा यीशु महान। बैतलहम का तारा, वह है राजा सारे जहां का, देता हमें उद्धार। वह है राजा सारे जहां का, देता हमें उद्धार। ईश्वर होकर भी वो आया, बन कर के इंसान, बन कर के इंसान। बैतलहम का तारा हमको देता ये पैगाम, गौशाले की चरनी में जन्मा यीशु महान। बैतलहम का तारा, गर चाहो तो उसको बना लो तुम भी अपना यार। गर चाहो तो उसको बना लो तुम भी अपना यार। या फिर चाहो कर लो उसको तुम दिल का मेहमान, तुम दिल का मेहमान। बैतलहम का तारा हमको देता
प्रभु यीशु तो संसार के राजा हैं। फिर उन्हें गौशाले में क्यों जन्म लेना पड़ा? और राजा तो बहुत बड़े महल में रहते हैं और महंगे कपड़े भी पहनते हैं। आप लोग यह जानकर चकित होंगे कि प्रभु यीशु कभी भी उस राजा की तरह नहीं रहे जैसे यहाँ धरती पर होते हैं। उन्होंने कभी गहने और महंगे कपड़े नहीं धारण किए, बल्कि कितने ही लोग तो ऐसे थे जो उनके जन्म की खबर मिलते ही शिशु अवस्था में ही उनको मार डालना चाहते थे। हम तो इस बारे में कुछ नहीं जानते। नहीं जानते? तो सुनो। जब बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तब वहां राजा हेरोद शासन करता था, और तभी सुदूर पूरब से यरूशलेम तक 3 ज्ञानी पुरुष चलकर आए और पूछने लगे कि यहूदियों का राजा पैदा हुआ है, कहां है वो? उन्होंने दूर पूरब में एक चमकदार तारे को देखा और उसी को देखते हुए यहां तक आए हैं। उन्हें उस बालक राजा के दर्शन करने थे। जब हेरोद ने इन बातों को सुना तो वो विचलित हो उठा और सोच सोचकर आग बबूला होने लगा। जल्दी बताओ मुझे, कौन है राजा? कहां जन्म हुआ है उसका? और ये एक बालक एक राजा कैसे हो सकता है? हे महाराज, नबी की भविष्यवाणी के अनुसार वे दाऊद के नगर बैतलहम में जन्मे हैं और वही सब लोगों पर राज्य करेंगे। नहीं, राजा मैं हूं। मैं राज्य मैं करूंगा। मुझे इस मामले की तह तक जाना होगा। कहां है वो तीनों ज्ञानी पुरुष? उन्हें तुरंत हाजिर किया जाए। तुम सब बेतलेहम जाओ। ध्यान रहे, जल्द से जल्द उस नवजात राजा को खोजो, और जैसे ही तुम्हें मिले तुरंत मुझे सूचित करो। मुझे भी उस नवजात राजा के दर्शन करने हैं। जी महाराज, हम अभी जाते हैं। चलो चलो चलो। अगर सचमुच ये नवजात बालक परमेश्वर के पुत्र हैं, तो हमें उनके लिए कुछ उपहार अवश्य ले जाना चाहिए। हाँ, ऐसा उपहार जो राजा के योग्य हो। सोना, मुर और लोबान, यही उत्तम होंगे नवजात राजा के लिए। ठीक है, चलो 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 चलते हैं। चलते हैं, चलो 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 चलो। हाँ चलो चलो चलो। मुझे लगता है राजा हेरोद की नीयत ठीक नहीं है। हाँ, उस पर विश्वास नहीं कर सकते। राजा हेरोद नवजात प्रभु यीशु से बहुत ईर्ष्या और घृणा करने लगा था, और उसे इस राजा से नफरत हो रही थी कि उससे भी अधिक ताकतवर दूसरा कोई हो सकता था। इसलिए उसने एक बहुत ही जालिम फरमान जारी किया। पूरे देश में 2 साल या उससे कम आयु के शिशुओं का कत्ल कर दिया जाए। जो भी इस हुक्म को नहीं मानेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। इसका मतलब प्रभु यीशु से मिलने कोई नहीं आया? प्रभु यीशु के जन्म का संदेश सबसे पहले गडेरियों को दिया गया। पर पापा, गडेरियों को क्यों? प्रभु यीशु तो संसार के राजा हैं। उनसे मिलने कोई राजा नहीं आया। प्रभु उनको दर्शन देते हैं
जो दिल से उनकी राह देखते हैं। की रात कितनी विचित्र है। हाँ, सही कह रहे हो। मुझे भी आभास हो रहा है कि कुछ शुभ बात होने वाली है। अरे भागो भागो, भूत भूत भूत, अरे भागो नहीं, भागो नहीं, रुक जाओ, रुको और मेरी बात ध्यान से सुनो। संसार के मुक्तिदाता यानी गरीबों के मसीहा ने जन्म ले लिया है और मैं उन्हीं के जन्म का संदेश सुनाने के लिए आप लोगों के पास आया हूं। क्या कहा? गरीबों के मसीहा? यानी क्या मसीहा ने जन्म ले लिया है? नहीं नहीं, ये सब बकवास है। हमें फंसाने के लिए इसकी कोई चाल है। नहीं मेरे भाई, परम पावन ईश्वर के पुत्र ने बेथलेहम के एक गौशाले में जन्म ले लिया है। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जाओ और स्वयं देख लो। तुम एक बालक को चरनी में लेटा और सफेद वस्त्र में लिपटा हुआ पाओगे। वही हैं गरीबों के मसीहा। लेकिन आप इतना बड़ा अद्भुत समाचार सभी बुद्धिमानों को छोड़कर हम गरीबों को ही क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि वो गरीबों के मसीहा हैं। क्या कहा? गरीबों का मसीहा? हाँ, गरीबों का मसीहा। लेकिन वो मात्र गरीबों का ही मसीहा नहीं, बल्कि वो हर एक जरूरतमंद व्यक्ति का मसीहा है। चलो हम अपने मसीहा के दर्शन करने चले। हाँ, चलो चलो। हमारे मसीहा, हमारे मुक्तिदाता जन्म है। हम उनके दर्शन करने चलें। चलो हम सब बेथलेहम चले। स्वर्गदूतों की बातें कभी गलत नहीं हो सकती। चलो इस उज्जवल तारे को सहारा बनाकर हम सब प्रभु के दर्शन करने चले। अरे वो देखो, वो है तारा। चलो चलो जल्दी चले। यही है हमारे मुक्तिदाता। स्वर्ग और संसार के सभी वैभव को छोड़कर
इन्होंने हम गरीबों की सुध ली है। यही है ईश्वर का हम मनुष्यों के प्रति प्रेम। मनुष्य तो हमें भूल सकते हैं, लेकिन ईश्वर कभी नहीं। हे प्रभु, तू धन्य है, तू महान है। गरीबों के मसीहा की जय हो। आओ हम अपने मसीहा की स्तुति करें। हम चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना। चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार प्रभु यीशु ने ईश्वर होते हुए भी हम मनुष्यों के बीच निवास करना चाहा, ताकि हमारा उद्धार हो सके। क्रिसमस का संदेश यहीं पर समाप्त नहीं होता है। क्रिसमस हमें जीना सिखाता है। क्या गरीब, क्या अमीर, सबों को एक साथ मिलकर प्रेम और भाईचारे से जीवन जीने के लिए बुलाता है। क्रिसमस का पर्व हमें सिखाता है कि किस तरह कोई भी व्यक्ति आत्मसंतुष्टि के द्वारा खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता है। बाहरी चहल पहल से परे कैसे आज भी मानव जीकर अपनी अभिलाषाओं का दमन कर सकता है। ये पर्व हमें नम्र, विनीत और दयालु बनाते हुए एक साधारण पर परिपूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने के लिए आमंत्रित करता है। पापा, मैं आज के बाद आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जो भी मेरे पास है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। चलिए हम सब चर्च चले। चलिए चलिए हम सब चलते हैं। मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस।
सुकून तुम ही हो, मेरा जुनून तुम ही हो। दिल की चाहत रुकी रात मेरा सुकून मेरा जुनून, दिल की चाहत रुकी रात मेरा सुकून मेरा जुनून। जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी जन्म लियो, जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी जन्म लियो, जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी जन्म लियो, जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी जन्म लियो। इस मनमोहक प्रस्तुति के लिए मैं सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करती हूँ। तो देखा आपने, ईश्वर भटके भोग को राह दिखाने व उनका उद्धार करने के लिए इस संसार में आया। यह हम सभी के लिए एक खुशी का क्षण है। तो हमारे होनहार बच्चे शानदार नृत्य प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक हैं। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। आशा है आप सभी को ये प्रस्तुति बहुत पसंद आई होगी। तो क्यों ना एक प्रस्तुति और हो जाए। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्रेया को। ദൂരെ നിന്നും ദൂരെ ദൂരെ നിന്നും മരുഭൂവിൻ വഴികളിലൂടെ ഒരു കാലിത്തൊഴുത്തു തേടി മൂന്നു രാജാക്കന്മാരെത്തി. ദൂരെ നിന്നും മരുഭൂവിൻ വഴികളിലൂടെ ഒരു കാലിത്തൊഴുത്തു തേടി മൂന്നു രാജാക്കന്മാരെത്തി. വാനം തെളിഞ്ഞു നിന്നു, ദിവ്യതാരം തിളങ്ങി നിന്നു, വാനം തെളിഞ്ഞു നിന്നു.
സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി മാലാഖമാരവർ വാനവീഥികളിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി ദൂരെ നിന്നും ദൂരെ നിന്നും മരുഭൂവിൻ വഴികളിലൂടെ ഒരു കാലിത്തൊഴുത്തു തേടി 3 രാജാക്കന്മാരെത്തി. Christmas, Christmas, Merry Christmas. Bonnatale means Merry Christmas. സ്നേഹത്തിൻ പുതുവർണ്ണ കാഴ്ചയുമായി ബൊണ്ണത്താലെ വീണ്ടും വന്നിടുന്നു. ഗ്ലോറിയ ഗീതകം പാടി സ്തുതിച്ചിടാം, വാനവരോടൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യാം, രക്ഷകൻ ഈശനെ കണ്ടു വണങ്ങിടാം, എങ്ങും ആഘോഷമായി. ക്രിസ്മസ് മൊഴികളിൽ ക്രിസ്മസ് ഹൃദയത്തിൽ ആനന്ദം ബൊണ്ണത്താലെ. ക്രിസ്മസ് മൊഴികളിൽ ക്രിസ്മസ് ഹൃദയത്തിൽ ആനന്ദം ബൊണ്ണത്താലെ. Christmas, Christmas, Merry Christmas. ബൊണ്ണത്താലെ means Merry Christmas. സ്നേഹത്തിൻ പുതുവർണ്ണ കാഴ്ചയുമായി ബൊണ്ണത്താലെ വീണ്ടും വന്നിടുന്നു. अब मैं मिस्टर टिमोथी, मिस्टर फ्रिट्ज, मिस्टर रॉबिन को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे क्रिसमस कैरल्स द्वारा वातावरण को मनमोहक बना दें. दुनिया में तू आते हो बचा
पल तनाव रहे उन्मुक्त हंसी हम सबको आनंदित करती है। हमारे मन की शांति मिलती है। अब आपके सामने भरपूर मनोरंजन प्रस्तुत करने आ रहे हैं मिस्टर पंकज। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? 12 रुपया। अब देखो छमिया, क्या हुआ बताइए। जरा कुछ नाच गाना दिखा दो हमको भी। नहीं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। लड़कियां मिनी स्कर्ट पहनती हैं तब तो तुम नहीं कहते हो। चमक चलो। प्यार हो गया है आपको हमसे? गाना सुना देते हैं आपको। ए चम्मच निकाल अपने दीवाने का कर दे पूरा हाल रे की अखियों से गोली मार। भाई, रुको जरा, सब्र करो। गणपत बजाना काय को बंद किया? होगा एक और टाइम म्यूजिक। मजा नहीं आ रहा है। माइकल जैक्सन, अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। सपनों में रोज़ आए, आ जिंदगी में आना सनम। डांस आता है? करें फिर कुछ? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें,
बिजली जैसी चाल, देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा। आज का मुद्दा यहीं खत्म करते हैं। और जो 11 रुपया है वो हम नहीं दे सकते हैं, ये छोटा रिचार्ज का कूपन है, ये आप लगे। धन्यवाद इस वातावरण को खुशनुमा बनाने के लिए। अब मैं सिस्टर सिंधिया को आभार प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ। डरिए नहीं, देखिए मैं आपके लिए बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। उसका नाम ईसा रखोगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के इस शुभ अवसर पर बीसीएम अस्पताल की प्रशासिका रेवरेंड सिस्टर शाइनी एंटनी और समस्त सिस्टरगण के नाम पर मैं आप सबको धन्यवाद प्रकट करने के लिए इस मंच पर उपस्थित हूँ। मैं सर्वप्रथम प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ, जिनके नाम पे हम सब यहाँ सम्मिलित हैं। मैं अपना हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ हमारे रेवरेंड फादर क्लोडियस और रेवरेंड फादर लॉरेंस जोले को, जिन्होंने हमारे लिए क्रिसमस का प्रेरणादायक संदेश एवं अपना आशीर्वाद दिया है। आपको और सभी सीएमआई फादर्स को भी अपना आध्यात्मिक मदद के लिए धन्यवाद। इधर उपस्थित या अनुपस्थित हर एक डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स एंड स्टाफ, आप सबके प्रति प्यारे पिता परमेश्वर को आपके निस्वार्थ सेवा एवं सहयोग, आपकी प्रेम, आपसी प्रेम तथा मेल मिलाप के प्रति मैं आभार प्रकट करती हूँ। आप लोगों ने आज यहाँ सम्मिलित होकर क्रिसमस का संदेश आनंद और शांति बांटने में अपनी सहमति प्रकट की। इस मुबारक कार्य के लिए यहाँ उपस्थित आप सभी को दिल से गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। आपके भागीदारी के बिना हमारी ये चंगाई का अभियान संभव नहीं है। हमारी सफलता के पीछे प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग सराहनीय है। ईश्वर आप और आपके परिवारों को हमेशा सलामत रखे। मैं अब हमारा मिस्टर अरुण जी, हमारा पत्रकार को आभार प्रकट करती हूँ, जो अपना अमूल्य समय निकालकर इधर हमारे साथ मिलने के लिए आया है। मिसेस शरीना आशीष ने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से संचालित किया। आपको बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में प्रभु यीशु के जन्म और उसके प्रेम का संदेश एक डांस ड्रामा द्वारा प्रकट करने के लिए अपना समय और सहयोग देने वाले सभी सिस्टर्स, स्टाफ एंड बीसीएम कैंपस के बच्चे और हमारे कैंडिडेट्स, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टर आनंदा और सिस्टर टेसी, सभी पार्टिसिपेंट्स को अभ्यास कराते हुए पूरे कार्यक्रम का कोऑर्डिनेट करने के लिए आप विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उन सबों को भी आभार प्रकट करना चाहूंगी जिन्होंने मंच के पीछे से हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने में निस्वार्थ काम और त्याग किया और हमारे साथ दिया। सभी सिस्टर्स, स्टाफ, इलेक्ट्रीशियंस, मेंटेनेंस टीम, सिक्योरिटीज,
एंड हाउसकीपिंग टीम एंड सबको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हमारे भाई निशान और टीम ने हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया है। उनके परिश्रम और उदारता के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ईश्वर आपको आशीष दे। मैं कृतज्ञता पूर्वक याद करती हूँ हमारे कैंपस में रहने वाली सीनियर सिस्टर्स जो रोज प्रभु के सामने अपने दर्द तकलीफ समर्पित करके हमारे रोगियों, डॉक्टरों और सभी स्टाफ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनका योगदान हमारे मिशन के लिए मुख्य है। अंत में मैं यहाँ उपस्थित मेरे सारे भाइयों और बहनों अपना महत्वपूर्ण उपस्थिति के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। इस साल का क्रिसमस आशा, क्षमा और शांति का संदेश लेकर आते हैं। आइए हम यीशु मसीह के चाह के अनुसार अपने दुश्मनों को प्यार और क्षमा करके शांति और भाईचारा की नींव पर एक समाज निर्माण करने का प्रयत्न और प्रार्थना करें। विश यू ऑल a very happy Christmas and a graceful, peaceful New Year 2024. Thank you. अब कार्यक्रम को विराम देने का समय आ गया। आप सभी को क्रिसमस और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। भोजन की व्यवस्था हो चुकी है। मैं रेवरेंड फादर जॉनी से अनुरोध करती हूँ कि वो भोजन के लिए आशीषित करें। हे पिता ईश्वर, इस सुंदर सायन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव इस सुंदर समारोह द्वारा हमने मनाया। हे प्रभु यीशु, आप अपने जन्म के अवसर पर शांति, प्यार और भाईचारा का संदेश लेकर इस पृथ्वी पर आया। यहाँ उपस्थित हम सबको आशीष दे, हमारे परिवारों को आशीष दे और हमारे जीवन में शांति एवं प्यार से भर दे। हमने जो प्रीति भोज में भाग लेने जा रहे हैं, इस प्रीति भोज को आशीष दे, इसे बनाए लोगों को भी आशीष दे। इस प्रीति भोज समारोह में हम भाग लेकर आपस में प्यार एवं खुशी का भावनाओं को बांटे। हम सबको आशीष दे। ये प्रार्थना हम प्रभु मसीह द्वारा आपके चरणों पर समर्पित करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।